ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਲਰਨਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਪ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 2। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 2 ਨੂੰ। ਫਸਟ ਵਰਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2 ਇਫ ਇਟਸ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ ਈਵਨ। ਈਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 4 6 8 ਜਾਂ 0 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 10 20 30 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2 ਇਫ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਵਿਦ 0 2 4 6 8। ਥਰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2 ਇਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਈਵਨ। ਲਾਸਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Suppose 4 6 7 8 number end with 8, so number is divisible by 2. 8 is, so number is divisible by 2. 5 6 3 7, a number end with 7, so number is not divisible by 2. 6 7 8 0, a number end with 0, so number is divisible by 2. ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ 2 3 4 ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 2 ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ 2 3 4 2 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, 2 ਨਾਲ। ਦ ਨੰਬਰ 2 3 4 ਐਂਡ ਵਿਦ 2, ਸੋ ਨੰਬਰ 2 3 4 ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2 3 5 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ 2 3 4 7। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 2 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 3 4 7 ਐਂਡ ਵਿਦ 7, ਸੋ 2 3 4 7 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 3। ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ 3 ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3 ਇਫ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਸਮ 10 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, 3 ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3 ਇਫ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ all digit that number is multiple of 3, ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ 3 ਦਾ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 3 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਜ਼ 4 6 7 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਸਮ 4 + 6 + 7 + 8। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 10 + 7 17, 17 + 8 25। 25 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਗਾ 3 ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 25 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 25 is not divisible by 3, so 4 6 7 8 is not divisible by 3। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ, 4 5 6 6, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21। 21 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਯੈਸ। 21 is divisible by 3, so 4 5 6 6 is also divisible by 3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ 3 3 4 5 ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 3 ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ 3 3 4 5 ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ, ਮਤਲਬ 3 + 3 + 4 + 5 ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ 15। 15 3 ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ 2 2 4 5 ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ, 2 2 4 5 ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ 2 + 2 + 4 + 5, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13। 13 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 13 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3, ਸੋ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 2 4 5 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 4। ਇਹਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ 3 ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਵਰਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 4 if the last number formed by its last 2 digit in the same order is divisible by 4। ਜੇ ਲਾਸਟ 2 digit 4 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, 4 ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। A number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digits divisible by 4। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੈ,
कुछ नया की ऐड होया आ, और इफ बोथ द डिजिट्स आर 0, जे लास्ट दो डिजिट 4 ਨਾਲ डिविजिबल है ਜਾਂ लास्ट टू डिजिट्स 0 है तो नंबर 4 ਨਾਲ की है डिविजिबल है। जे लास्ट टू डिजिट 4 ਨਾਲ डिविजिबल है ਜਾਂ लास्ट टू डिजिट 0 है तो नंबर किहदे ਨਾਲ डिविजिबल है 4 ਨਾਲ डिविजिबल है। लास्ट वर्जन की है इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, जे लास्ट टू डिजिट 4 ਨਾਲ डिविजिबल है तो वह नंबर की मल्टीपल होगा 4 का मल्टीपल होगा या 4 ਨਾਲ की होगा डिविजिबल होगा। सपोज आप नंबर ले लिया 11632, 11632 ये लास्ट टू डिजिट की है 32, 32 किहदे ਨਾਲ डिविजिबल है 8 ਨਾਲ 32 किहदे ਨਾਲ डिविजिबल है 4 ਨਾਲ की है डिविजिबल है 4 ਨਾਲ की है डिविजिबल है 4 8 का 32, ਇਹਦਾ मतलब 11632 भी किहदे ਨਾਲ डिविजिबल है 4 ਨਾਲ डिविजिबल है। आप कोई नंबर ले लिया 440, इट्स लास्ट टू डिजिट इज 0, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो सारा नंबर किहदे ਨਾਲ डिविजिबल है 4 ਨਾਲ डिविजिबल है। 4413 ये लास्ट टू डिजिट की है 13, 13 4 ਨਾਲ डिविजिबल है नहीं, तो 4413 भी 4 ਨਾਲ डिविजिबल नहीं है। देखते हैं पेपर च किवें लिखना। सपोज अपने को क्वेश्चन आ गया चैक वैदर 2245 इज डिविजिबल बाय 4, आप पहला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 लिखना है। 2245 किहदे नाल एंड हुंदा है 45 नाल। 45 4 नाल डिविजिबल हैगा कि नहीं हैगा, नहीं हैगा। आप चैक कर लेने हैं पेपर च तुसी डिवाइड भी शो करनी है। 45 4 1 दा 4 5 उपरों तो कितना आ गया 11, 1 आ गया रिमाइंडर। तो 45 4 नाल डिविजिबल नहीं हैगा तो नंबर भी 4 नाल डिविजिबल नहीं हैगा। यदि आप हम सैकेंड एग्जाम्पल देख लेने 1132 इज डिविजिबल बाय 4, पहला आप लिखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 लिखना है, और सॉरी आप पहला की लिखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 1132 ये लास्ट टू डिजिट की है 32, 32 4 नाल डिविजिबल है यस, तो नंबर भी 4 नाल की है डिविजिबल है। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वर्जन इसका ऐसे है बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इन द नंबर इज 0 और 5। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 4 6 7 8, लास्ट डिजिट इज 8, सो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 4 6 3 0, लास्ट डिजिट इज 0, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 3 4 2 5, लास्ट डिजिट इज 5, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब पेपर में इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। चेक वेदर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, चेक वेदर 2130, चेक वेदर 2130 इज डिविजिबल बाय 5। 213, तो in 2130 the last digit is 0, so therefore 2130 is divisible by 5। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 4560 is divisible by 5, पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 लिख लिया। 4560 the last digit is 0, therefore 4560 is divisible by 5। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, चेक वेदर 3265 इज डिविजिबल बाय 5। 3265 लास्ट डिजिट इज 5, therefore 3265 is divisible by 5। अब बेटा हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is even number and the sum of its digit is divisible by 6। या तो नंबर इवन होना चाहिए या डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से। सेकंड वर्जन क्या है इसका, द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 स्टेट दैट द नंबर इज डिविजिबल टू बी डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। जो नंबर है अगर वो 2 पे भी डिविजिबल है 3 पे भी डिविजिबल है तो वो 6 पे भी डिविजिबल है।
इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। कौन सा नंबर है 4 5 6 7? पहले हमने किससे चेक करना है? 2 से चेक करना है। कौन से रूल से? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से। A number is divisible by 2 if the number end with 0 2 4 6 8। ये हम पहले कर चुके हैं। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस 4 5 6 7 इज नॉट, ये नहीं आएगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो 4 5 6 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इस केस में हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं। 2 3 8 8 इज डिविजिबल बाय 6। पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 लिखना है, पिछले क्वेश्चन में रह गया था। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 लिखना है, फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 लिखना है। चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 2। द लास्ट डिजिट इज 8। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8। सो 2 3 8 इज डिविजिबल बाय 2। ये डिविजिबल किससे हो गया? 2 से क्या है? डिविजिबल है। अब हम चेक करना है 3 से। सम ऑफ डिजिट्स 2 + 3 + 8 + 8 क्या आ गया? 21। 21 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो 2 3 8 1 भी किससे डिविजिबल है? 3 से। द नंबर 2 3 8 8 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ये किससे डिविजिबल है? 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 2 3 8 8 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी। 2 3 6 8 इज डिविजिबल बाय 6। हमें पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर डिविजिबिलिटी 2 से चेक किया, लास्ट डिजिट इज 8, सो 2 3 6 8 इज डिविजिबल बाय 2। हम अपने किससे चेक करना है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से चेक करना है। सम ऑफ डिजिट सम कर लिया, क्या आ गया हमारे पास? 19। 19 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल 3 से नहीं है। अब हमने क्या लिखना था? नंबर 2 3 6 8 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 3। तो ये नंबर 6 के डिविजिबल नहीं है। कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा? जो 2 से भी डिविजिबल होगा, जो 3 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब हम करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ध्यान से देखना है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7। नंबर कब डिविजिबल होगा? 7 से। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर लिविंग द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर्स में से उसको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। इफ द डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7 देन इट इज डिविजिबल बाय 7। अगर हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, जब मल्टीपल ऑफ 7 आ गया तो नंबर किससे डिविजिबल है? 7 से। एक वेरिएंट और लिखा है, वो कैसे लिखा है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब लास्ट डिजिट, ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0। तो डिस्कस करते हैं इसको एग्जांपल के साथ कैसे करना है। 4 3 2 6 और उसने क्या बोला? डबल द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कौन सा है? 6। 6 का डबल क्या हो गया? 6 का डबल क्या हो गया? 12। लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2, हमने कर दिया 12 एंड सब्ट्रैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। बाकी नंबर क्या है हमारे पास? 432 माइनस 12 क्या आ गया? 420। क्या आ गया हमारे पास? 420। 420 हमने चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। 7 6 42, तो ये 427 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 437 डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट, 7 का डबल क्या हो गया? 14। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ डिजिट, बाकी कौन से बचा? क्या बचा हमारे पास? बाकी क्या बचा हमारे पास? 43। 43 में से 14 हमने क्या कर दिए? माइनस कर दिए। क्या आ गया हमारे पास? 29। 29 7 पे डिविजिबल है? नहीं है।
27 7 पे डिविजिबल नहीं है। 27 हम ये भी बोल सकते हैं 7 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 437 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। इसको अब पेपर में कैसे लिखते हैं वो जानते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ गया, चेक इफ 1386 इज डिविजिबल बाय 7। पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 लिख लिया। द लास्ट डिजिट ऑफ 1386 इज 6। लास्ट डिजिट का डबल किया तो कितना आ गया हमारे पास 12। तो रिमेनिंग पार्ट क्या था 138 138। तो 138 में से हमने 12 को क्या करना है माइनस करना है। तो कितना आ गया हमारे पास 126। अब 126 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 126 7 से डिविजिबल है, तो 1386 भी 7 से क्या है डिविजिबल है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसकी। ये देखिए सेकंड एग्जांपल, 1123 इज डिविजिबल बाय 7। पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 लिख लिया। 1123 लास्ट डिजिट क्या था उसका, यहाँ पे आएगा 3। लास्ट डिजिट क्या है 3, डबल द लास्ट डिजिट क्या आ गया हमारे पास 6। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हमारे पास 112। लास्ट डिजिट तो हमने छोड़ना ही है, तो 112 में से हमने 6 क्या कर दिए माइनस 106। अब हमने 106 चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। 106 7 से डिविजिबल नहीं है, वो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। इसका मतलब 1123 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। A number is divisible by 8 if the last 3 digit of a number form a number that is divisible by 8। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से क्या है डिविजिबल है। A number is divisible by 8 if the number formed by last 3 digit is divisible by 8 और all 3 digits are 0। अगर तीनों पीछे नंबर के तीनों जीरोज आ जाती हैं तब भी ये नंबर क्या है 8 से क्या है डिविजिबल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले ली हमने 41556, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है 556। अब हमने 556 देखना है भी 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 8 6 48, 8 9 72, रिमाइंडर क्या आ गया 4। तो ये 556 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसकी, 4123 ये बड़ा नंबर आ गया हमारे पास। अब हमने ये चेक करना है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। हमने लास्ट 3 डिजिट क्या है 512। तो 512 हमने चेक करना है भी 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 6 48 माइनस करके आ गया 3 और 2 32, 8 4 32। तो 512 किससे डिविजिबल है 8 से, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल है 8 से। अब इसको पेपर में कैसे लिखना है वो देखते हैं। चेक 56368 इज डिविजिबल बाय 8। पहले हमने क्या लिख लिया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 लिख लिया। द लास्ट 3 डिजिट्स आर 368। इसके लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं 368। अगर 368 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल है। क्वोशिएंट हमारे पास 46 आता है और रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। हमने साइड पे डिवाइड करना है, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस 368 इज डिविजिबल बाय 8 सो 563 इज डिविजिबल बाय 8। ये लाइन मैंने वैसे लिखी है, ये आपने यहाँ पे डिवाइड करना है। इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 111366 इज डिविजिबल बाय 8। पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 लिख लिया। 366 लास्ट डिजिट क्या है 366। 366 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 45 क्वोशिएंट आता है, 6 क्या आता है रिमाइंडर आता है। ये आपने साइड पे डिवाइड करना है। सिंस 366 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। बेटा अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। Divisibility of rule 9 state that if the sum of digits of any number is divisible by 9 then the number is also divisible by 9।
और कैसे लिख सकते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट प्रेजेंट इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 का रूल है वैसे ही है 9 का रूल। फिर भी इसकी एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। 4 5 6 7, सम ऑफ डिजिट 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 3 1 6 8, सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से क्या है, डिविजिबल है। 4 3, चेंज कर लेते हैं, 1 2 4 3, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये 1 2 4 3 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको पेपर में कैसे लिखना है वो देखते हैं। चेक वेदर 7 8 4 7 इज डिविजिबल बाय 9। पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 लिख लिया। 7 8 4 7 8, 7 8 4 8, इसके सम ऑफ डिजिट्स के आगे 7 + 8 15, 15 + 4 19, 19 + 8 27, 27 किससे डिविजिबल है, 9 से, तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 3 3 4 5 इज डिविजिबल बाय 9। पहले हमने क्या लिख लिया, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 लिख लिया। 3 3 4 5 इनका सम कर लिया हमने, 3 + 3 + 4 + 5 क्या आ गया, 15, 15 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, ये सबसे सिंपल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। और कैसे लिख सकते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 0। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे है 4 6 7 0, इट्स लास्ट डिजिट इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 10। 3 4 6 7, इट्स लास्ट डिजिट इज 7, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। 2 3 2 2, इट्स लास्ट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अब इसको भी देख लेते हैं भी कैसे पेपर में कैसे लिखना है। चेक वेदर 7 8 4 7 इज डिविजिबल बाय 10। पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 लिख लिया। इन नंबर 7 8 4 8 द लास्ट डिजिट इज क्या आएगा हमारे पास, 8, लास्ट डिजिट इज 8। सिंस द लास्ट डिजिट इज 8, द नंबर 7 8 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अगला देख लेते हैं, चेक वेदर 5 6 4 इज डिविजिबल बाय 10। पहले हमने क्या लिख लिया, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। इन नंबर 5 6 4 0 द लास्ट डिजिट इज 0। सिंस द लास्ट डिजिट इज 0, द नंबर 5 6 4 इज 0 इज डिविजिबल बाय 10। अब नेक्स्ट रूल करते हैं हम 11, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 स्टेट दैट द नंबर डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of its odd digit position and sum of digit in the even position is either 0, या odd places और even places या even places और odd places, डिफरेंस का मतलब है कोई भी आगे पीछे आ सकता है, उनका क्या हो, आइदर उनका डिफरेंस क्या हो, 0 और मल्टीपल ऑफ 11 हो। और कैसे लिख सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 स्टेट दैट द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ the alternative digits of a given number is either 0 or divisible by 11, then number is divisible by 11। अब पहले हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए पहली एग्जांपल क्या है, चेक वेदर 5 6 4 5 इज डिविजिबल बाय 11। हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 लिख लिया। अब ध्यान से देखना इसको, पहले ऑड प्लेसेस देखते हैं। ऑड प्लेसेस हमने पीछे से देखनी है, कौन सी हैं, 5 4 5, इनका हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। 5 4 5, ऑड पोजीशन का हमने सम कर लिया, कितना आ गया, 14। फिर हमने इवन पोजीशंस देखनी है। इवन कौन सी है, ये सेकंड नंबर वाली, फोर्थ नंबर वाली, हमने इसका सम कर लेना है।
5 + 6 क्या आ गया 11, दोनों का डिफरेंस कर लिया, दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आ गया 14 - 11 कितना आ गया 3। 3 is not a multiple of 11, so 5 6 4 5 is not divisible by 11। इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। और सेकंड एग्जांपल में देखो ऑड पोजीशन पे कौन से नंबर है 1 1 5। पहले हमने ऑड पोजीशन वाला नंबर का सम कर लिया, कितना आ गया 7। फिर हम देखते हैं इवन पोजीशन वाले नंबर कौन से 2 8 9, क्या आ गया हमारे पास 19। डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस में हम बेटा ऑड माइनस इवन भी कर सकते हैं, इवन माइनस भी ऑड कर सकते हैं। जो बड़ा होगा वो आगे लिखना है, जो छोटा होगा वो पीछे लिखना है। डिफरेंस का यही मतलब होता है। 19 - 7 क्या गया 12। 12 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल भी लिख सकते हैं, मल्टीपल भी लिख सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं, पीछे से ऑड नंबर देखते हैं 3 5 8, सबका सम कर लिया, कितना आ गया 16। अब हम देखते हैं पीछे से इवन नंबर कौन से हैं 4 6 6, सबका सम कर लिया, क्या आ गया 16। डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस क्या आ गया 16 - 16 क्या आ गया 0। डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव प्लेसेस इज 0, सो 6 8 6 5 4 3 इज डिविजिबल बाय 11। इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें मल्टीपल ऑफ 11 आता है। पीछे से डिजिट देखते हैं, 1 ऑड प्लेस पे है, ये 1 भी ऑड प्लेस पे है, 6 भी ऑड प्लेस पे है। तीनों का सम कर लिया हमने, ऑड प्लेसेस वालों का क्या आ गया 8 आ गया। फिर हम देखते हैं इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस कौन सी हैं 2 8 9, इनका सम कर लिया, क्या आ गया 19। फिर हमने क्या करना है डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस, क्या आ गया 19 - 8 11। 11 इज मल्टीपल ऑफ 11, 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो ये नंबर भी किससे डिविजिबल है 11 से डिविजिबल है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लर्नर्स पॉइंट पे बने रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।